स्वच्छ भारत हो और अब ये मिशन पानी। आपका क्या मैसेज है, आपकी क्या सोच है कि कैसे इसको हम जन आंदोलन बना सकते हैं, इस जल आंदोलन को? मेरा मन हुआ कि इसमें जुड़ जाना चाहिए, सो जुड़ गए। और एक बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। और मुझे लगता है कि ये न केवल देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक एक निर्णय लिया है आपके चैनल ने। तो सबसे पहले आपको हम बधाई देंगे और शुभकामनाएं देंगे कि आपने इस मुहिम को उठाया है और इसके साथ जुड़ के काम करने में ये मेरा सौभाग्य। जिस दिन जल शक्ति अभियान का अनाउंसमेंट हुआ था भारत सरकार की ओर से, उस दिन हमने मिशन पानी को करने का ठान लिया था। बट आई हैव टू टेल यू दैट हैड इट नॉट बीन फॉर आवर पार्टनर्स, वी वुडंट हैव गॉट द काइंड ऑफ फिलिप, द मोमेंटम दैट वी एक्चुअली नीडेड। सो आई हैव टू थैंक यू Nachi, and if I may call you that. Everybody knows him as Nachi. He's Natsaman Ishwar, but everybody calls him Nachi. So let me ask you, what is so special? Because for you, why did this cause attract you so much? Firstly, thank you very much, Anand, for having us here. Thank you very much, Bachchan sir, for coming and gracing this occasion with your presence and being the face of this hopefully historic campaign going forward. To answer your question specifically, we've always been associated as RB and Harpic with sanitation agenda. Ever since the Prime Minister gave the call a few years ago for Swachh Bharat, we've been focused on the sanitation agenda, whether it was the manual scavenger program where we did the Harpic World Toilet College or community programs for open defecation. When the Prime Minister gave the call for saving water, and we went back and took a look at what it means for the country and the situation that we're in today, it's similar to the kind of video that you showed. Yeah. The situation is precarious. And therefore, we felt that as somebody who's championed sanitation and water are so closely linked that we said we must come together and try to do something. And that's when I think we started talking and came up with this idea to do Mission Pani. And I'm absolutely delighted and grateful that this day has come. Hopefully, it's the beginning of something quite strong that brings the nation together. It is about becoming water conscious. It is about the target of making India a water secure nation. Sir, आप जानते होंगे, but मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा जो हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर and जो अभी इस broadcast को live देख रहे हैं, that India receives about 4,000 billion cubic meters of water, rainfall, every year. But we are not able to conserve or save less than 1/10. We are only able to get up to 300 billion BCMs of water. 300 BCMs of water is what we are able to save. आप बड़े से बड़ा डैम से लेकर गांव खेले में छोटे से छोटा अगर आप नहर देखें या फिर पॉन्ड देखें, रिजर्वायर देखें, जितना हम पानी बचा सकते हैं is only this much. And 89% of our water consumption is in rural India. अमित जी, कैसे हम कर सकते हैं कि एक तरफ हम देखते हैं बाढ़ की सिचुएशन है, दूसरी तरफ सूखा है, ड्राउट है, ये कॉज है, और ये सिर्फ हमारे घर में शेव करते वक्त नलका बंद करने से नहीं शुरू होता है. इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम अ डिफरेंट कॉज, जहाँ पर हम हमारे ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ की को वापस उसको पुनर्जीवित करना, जो वाटर पुरानी नदियाँ थीं उनके रिवर फ्लोज को ऊपर करना, वहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी हमें. छोटी मुहिम नहीं है. जैसे कि मैंने कहा कि जब इस तरह का कोई अभियान ये शुरू होता है, whenever we start something which is a campaign of this magnitude, taken interest by people like yourself, sir, and by the network, I think it spreads the message through the entire country. I believe and I hope that during the course of this campaign and during the course of the interviews and the discussions that we have, we will come to learn a lot more about the statistics and the needs that are required. अभी आपने बहुत सारे आंकड़े पढ़ दिए, ये मैंने अपने जीवन में पहली दफ़ा सुना है. और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जब आम जनता को बताई जाएंगी, वो जब सुनेंगे तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर भी पैदा होगा कि अगर ये स्थिति है हमारे देश की तो इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए. And therefore I just feel that everyone getting involved in something like this is of utmost importance. So from day one we've had a lot of support, not just from the Aam Janta but from corporates, from people like yourself who have lent so much of, whose opinion matters, जिनकी आवाज़ में वज़न ही नहीं दम भी है, in the sense कि आप influence कर सकते हैं, लोग सोचना शुरू करते हैं जब आप जैसे लोग इस मुहिम से जुड़ते हैं. And we also have the government support. Right from day one, the Jal Shakti Ministry
जो पहली बार एक effort है, they have also joined us. With your kind permission, we'd like to play out a small campaign, AV, that sets up the entire story. You've been part of so many campaigns, even polio and other causes, social causes. How difficult or easy it is to bring forth a behavioral change, Mr. Bachchan? I think we have to persevere in whatever we want to say and push across to the people of the country. It took us 8 years to get India free from polio, and it wasn't an easy job, but we just carried on and on and on, using different methodologies, trying to pursue people right into the interiors of the country. I think something similar is being done in many other spheres as well, and we will have to do the same for this. I think as we go along, some of the statistics I keep repeating again and again, and some of the factual details that what can happen to us if there is no water tomorrow, then that is a very dangerous situation. I've just done some promotions for your channel a little while ago, and we're doing some interviews, and we met some very fine gentlemen and young kids, a young girl who in her school has taken up this project of wanting to save water, save rainwater. So it is, examples such as these that will help us in going forward. We were talking about somebody looking at, harvesting the rainwater, where to channel it. These are some of the efforts that we'll have to continue doing. Every individual will have to do something for it to count. From an आम आदमी कहते हैं हर घर से शुरुआत होती है तो आपके घर में क्या हो रहा है मैंने से आपके घर that is Reckitt Benckiser as a company, you as an individual, you as somebody who's spearheading, are you also going to be conscious about the water print? I think all of us have to be. हम सबको होना चाहिए. I think अमित जी ने बिल्कुल सही बताया कि हर कोई आदमी अगर एक बूंद बचाएगा तो सागर बन सकती है. So I think it's very very clear for us. हम इस प्रोग्राम में क्या करना चाहते हैं? What we want to do is basically raise the awareness of the issue. सब लोग को पता होना चाहिए कि क्या है इशू. ये अगर एक दिन हम करेंगे और अगले दिन भूल जाएंगे तो it doesn't stay in your mind. We have to continuously keep talking about the water issue that we have in the country, sharing all the different statistics, sharing all the experts' knowledge, and raise the awareness. The second thing that we need to do is to make sure that when people's awareness has been increased, they're going to say, just like all of us, कि हम क्या कर सकते हैं? हमसे क्या होगा? आप बताइए कि हमको करना क्या चाहिए? So we also want to work to come up with tips and techniques that can actually help save water, which all of us can do in our homes, in the places where we work, where we go to work, in the fields, etc. And so therefore, driving behavior change. And the third area that I think is super important is, like you rightly said, to share inspiring stories of people who are doing great work. Because if you share those stories, those heroes feel like doing even more. Big people like ministers, bureaucrats, individuals, corporations, all look at it and say, why can't we help them? And lastly, the common person, people like you and me, look at this and say, what can we do? Can we also add? Because there is a great movement. So let me interrupt you there and put you on the spot. We've got Harpic, one of your biggest brands, right there with Mission Pani. Does Harpic save water? Let me ask you this. Okay, so yes, the way it works is that, for example, as you know, Harpic is used in the toilet. It's used as a toilet cleaning fluid, and it's a specialized cleaner. So typically what happens in India is, if you look at the Indian-style toilets, which is the majority of toilets in the country, there are not flushes. You have to pour water. The prevalent practice is to use detergents to clean the toilets. And detergents use 5 times the amount of water that a specialist product like Harpic does. So every time you are using Harpic, it just is formulated to basically save water. Now, as we go forward, hopefully we can do even better. But these products are built basically to save water because they are specialists. And unfortunately, in India, the habit is to use the detergents to clean the toilet, which is supposed to. Chennai is seeing a situation of floods. Chennai is just an example. This is a reality with every city across our country, in every village. आज बाढ़ है, कल सूखा है. आपको क्या लगता है कैसे इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं? अभी यहाँ आने से पहले आप चेन्नई की बात कर रहे थे, तो हमें एक ऐसे शख्स से मिले अभी जो कि चेन्नई के वासी हैं, और उन्होंने ये हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात की. किस तरह उन्होंने बताया कि जब तक जो पानी जो बरसता है वो धरती के अंदर नहीं जा पाएगा, तब तक हमारे कुएं का जो स्तर है वो ऊपर नहीं आएगा. और कई बार जैसे कि आप कह रहे हैं कि कुएं में से पानी निकाला जाता था, अब उसका स्तर जो है वो नीचे चला गया.
बहुत सी ऐसी बातें बताएं जैसे कि समुद्र तट पे जो बीच होता है, वो ज़मीन जो होती है, वो धरती जो होती है, वो पानी को खींचती है अंदर, और इससे हमारी जो पानी का स्तर है वो बढ़ता रहता है। लेकिन हुआ क्या है कि बहुत से जो कहने में थोड़ी सी आपत्ति हो, रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, उन्होंने वहाँ पर हाई राइज बना दी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी हैं। तो उससे क्या हुआ कि वो सीमेंट हो गया है जगह, और जो पानी जो है वो धरती में नहीं जा पा रहा है। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि उससे हमें कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं है, क्योंकि अगर उसके ऊपर सीमेंट लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि जो पानी चला गया अंदर वो सुरक्षित है। सुरक्षित है जी। कहीं ना कहीं इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही हैं, और काम हो रहा है जगह जगह, लेकिन वो एक शख्स है और वो एक शहर में काम कर रहा है। हमें चाहिए बहुत सारे ऐसे शख्स जो बहुत सारे शहरों में काम करें। बिल्कुल। एंड आप लोग इत्तेफाक रखते हैं अमित जी की बात से? आ, आप में फिट इवन फॉर मी is just sinking in the task that we have as a people, as a country. Yeah, I think it becomes all the more important to listen to these very noble and worthy words and start thinking more seriously, start sharing this information where we work, in the environment that we move around in, talk to our children, tell them what is going to happen in the years to come, and slowly inculcate in them some kind of a culture which goes along with the thinking of these very noble people. It is a massive problem. It's like, you know, a disaster that has already started to happen. And if we don't control it and watch it, what he's talking about, the landmass erosion, is so evident. I can talk from personal experience. You know, we used to go to shoot our films in Goa. We used to stay in this hotel at the Fort Aguada, and there was a lovely beach, and we used to, you know, go and spend our spare time there. And a couple of years back, I just happened to go back there. There's no beach left. It's come right up to the hotel. And slowly all this erosion is taking place. And it's very disheartening to see all this thing happening. So somewhere all of us have to start making and doing things to preserve the water systems. True. Sorry, I'm throwing some more numbers, but here is some more. 6%, only 6% of the total water in our country, water consumption in our country, is done by urban India or households, urban households. Another 5% by the industries. Ponds that he's been able to build. There is another person who's been able to reforest arid land, hectares of it. So if individuals can do that, why can't we as a collective? Yeah. I think you just said that just about 4 or 6% of urban India consumes the water or has the problem. 89 to 90% of rural India has this problem. And therefore, the impression goes that हम लोग 4% हैं, हम लोग ठीक हैं. उनकी दुविधा है वो जाने. But I think that people in urban India need to set an example for the people that are less privileged. And we can start doing that by doing little things. When we're having a shower, नहाते समय, चलिए हमारे पास साधन है कि हमारे पास हमारे घर में गुसल खाने में हम एक शावर लगा सकते हैं. कई बार ऐसा होता है, शावर ऑन कर देते हैं, फिर साबुन वाबुन लगाने लगते हैं, शावर चलता रहता है, फिर साबुन लगाने के बाद उसमें घुसते हैं, फिर धोते हैं. छोटी छोटी चीज़ें हैं. शावर ऑन किया, गीले हो गए, शावर को बंद किया, साबुन लगाया, और जब फिर धोना हुआ तब शावर फिर ऑन किया. छोटी सी बातें होती हैं. एक और it's a little insensitive, but I do want to bring it up Please. because I think it's very vital. हम लघु शंका के लिए गुसलखाने में जाते हैं. जी. उसे हटाने के लिए हम फ्लश चलाते हैं. जी. और जितना पानी उसको हटाने में जाता है वो लघु शंका से दीर्घ होता है, बहुत ज़्यादा होता है. बिल्कुल सही कहा आपने. कहीं ना कहीं इसका हमें एक उपाय ढूंढना होगा. So when you were talking, sir, about, you know, can we have some kind of arrangement? We spend our human, you know, water that goes out, but to clean it up and to wash it away, we pull the flush, which spends liters and liters of water just for that small amount of human waste. So can there be some device where we can cure that? Well, if airports can have no water urinals, why can't we think about that in our homes? Let's just put it there. And once again, like I said,
the philosophy has to flow down into the product, Nachi. So I'm going to put you back in the spot. Absolutely. I think there are two things, which is firstly, to answer your question, Avijji, right now the world's technology is not that developed to figure out exactly how to do that. There are flushes, as you know very well, that have one for the urinal and one for the feces. So that option is available. But in many cases, people just use the bigger one because वो आदत है कि बड़ा है तो उसको दबा देते हैं. So that technology is already available in the very high-end homes. But if you look at the most of the majority of India, there are no flushes. Flush तो है ही नहीं घर में. तो basically mug या bucket से बाल्टी से basically clean करते हैं. So this is what I was trying to say before also, कि a very simple thing is that it also depends on what you clean your toilet with. It's a very simple thing. करोड़ों लोग रोज टॉयलेट जाते हैं, सब जाते हैं. आई थिंक आप अमीर हो या गरीब हो, आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, आप नॉर्थ से हो या साउथ से हो, रोज टॉयलेट तो जाना ही पड़ेगा. प्रसाधन अनिवार्य है. ये तो एक कॉमन है जो सबको मने करना ही पड़ेगा. And the point really is that when you don't have a flush in your home, you end up using products that take more water. Very simply, if you use detergents to clean your toilet, you can spend 5 liters of water to clean your toilet. But if you use specialized products, it takes less than a liter of water to clean your toilet. Right. Let's start there. हर घर से. अभी हम जहाँ बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि 7,000 लीटर साल भर में एक इंसान इस्तेमाल करता है जी अपने ऊपर. उसका अगर आप अनुमान लगाएं तो कम से कम एवरेज पे 50 लीटर अगर एक बाल्टी में जाता है तो 140 बाल्टी पानी प्रत्येक इंसान भारत में इस्तेमाल करता है अपने आप के ऊपर साल भर में. बिल्कुल संख्या को हमें कम करना है. बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित जी. हमारे साथ बहुत सारे जल रक्षक हैं, मिस्टर बच्चन एंड नची. I want to get somebody to speak because आप लोगों के साथ ये conflict हो रहा है, मेरे साथ तो हो रहा है कि we have a cause moment and we have a fan moment, है ना. आप जब बैठे हैं तो ऐसा ही होगा कि सब कई लोग आपके फैंस भी हैं, जैसे मैं हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन cause भी है जो which is greater. So let me ask somebody. Yes, this is Parag. Parag runs Janajal. Tell us what Janajal is and your question. Such a privilege to be speaking in front of you, sir. Janajal एक social enterprise है, एक सामाजिक उद्यम. We are working to make safe drinking water available to the common man at an affordable cost. So we work at railway stations, bus stands, municipal areas, semi-urban areas, rural areas. और हमारी कोशिश ये है कि आम आदमी तक साफ पीने का पानी, शुद्ध पेयजल उन तक पहुँचे और एक बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे पहुंचे, क्योंकि जब तक हमारा ये मानना है कि जब तक जल को एक वैल्यू अटैच नहीं की जाएगी तब तक जल वैल्यू नहीं होगा. तो ये एक अपने आप में एक सोच है जिसको धीरे धीरे लोग भी अपना रहे हैं. हमारी जो एक्सपीरियंस है उसमें हमने ये देखा है कि जो एस्पिरेशनल इंडियन है वो चाहता है कि वो उस चीज़ को खरीद के ले. बहुत कम लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें फ्री में मिल जाए. Because they've worked hard for it, they're working hard for it. They feel that dignity. When they pay for something and they achieve it, they acquire it, they feel equal to the others. It democratizes the society. So what जी मैं आपकी बात की सराहना करता हूँ. आप बैठ जाएं. शुक्रिया सर. आपकी बात की सराहना करता हूँ. एक बात जो मुझे सूझती है वो ये कि हमारे ज़माने में हमने कभी सुना नहीं था कि जल जो है वो खरीदा जा सकता है. कभी नहीं सोचा था हमने. आज के ज़माने में हमें पीने पानी के लिए हमें ख़रीदना पड़ता है. घर में जब पानी की टंकी ख़त्म हो जाती है तो टैंकर को बुलाना पड़ता है. उसके लिए हम ख़रीदते हैं कि वो टैंकर आए और हमारे घर के टैंक को भारी करे. हमने कभी विचार भी नहीं किया था, कभी सोचा भी नहीं था. जब हम हमारे ज़माने में कभी ऐसा था नहीं. ये एक जो सुविधा आप बात कर रहे हैं कि किस तरह से ऐसा जल बनाया जाए ताकि उनको लगे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं एक तरह से मुफ्त में हमको मिल रहा है. तो कहीं ना कहीं हम जो प्राचीन ज़माने की बात कर रहा हूँ, अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ, कभी हमें लगता चाहिए कि हमें इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए उसके लिए पैसे क्यों खर्च करें. हम ईश्वर की देन है, उसे हमें मुफ्त मिलना चाहिए. ये भी बढ़िया सोच है. लेकिन अभी आपने कहा कि घरों में हम सोसाइटीज में टैंकर्स मंगाते हैं जब पानी खत्म हो जाता है. कुछ लोग यहाँ जुड़े हैं दोस्ती एकर्स से. हुआ तो पीपल
या आप लोग यहाँ पर हैं. They, sir, they have taken water conservation to that level where Dosti Acres in Vadala, your society does not get tankers. Why don't you tell them? You introduce yourself, ma'am, please. Ma'am, you can keep sitting. That's fine. हेलो सर जी, मैं नीता दलाल बोल रही हूँ. मैं हिंदी में बात करूँगी. सर, हमारी सोसाइटी में 154 फ्लैट्स है और टेरेस का सारा पानी जो है हम कंजर्वेट करके नीचे वेल है, एक हमारे कुआं है, वो कुआं में डालते हैं. और पूरे साल हमको गाड़ी धोने के लिए, फ्लश के लिए और गार्डनिंग के लिए म्यूनसिपल पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती पूरे साल भर में. और ये हम 2013 से कर रहे हैं. एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ दैट. और हमारा ये देख के आजू बाजू की बहुत सारी सोसाइटीज़ जो है उन्होंने भी ये ध्यान में लेके करना स्टार्ट कर दिया है. ये बहुत ही सराहनीय बात है और कई लोग इस तरह से इसका प्रचार भी कर रहे हैं और इसका उपयोग भी कर रहे हैं. स्वच्छ भारत अभियान में भी कुछ इसी तरह की योजनाएं चली थी, जहां पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में जहां की 25-30 या 100-200 फ्लैट्स हैं, लोग रहते हैं, उनका जितना कचरा है वो एक जगह एकत्र होता है, फिर उसका कंपोस्ट बनता है और वहीं पर उसका इस्तेमाल होता है. कंपोस्टिंग का काम भी हम लोग करते हैं. जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिल्डिंग आप. का. और अभी मैं जिन शख्स से बात कर रहा था जो कि बता रहे थे, वो चेन्नई की बात कर रहे थे कि किस तरह वो कंजर्व करते हैं. उन्होंने एक और अभियान चलाया है कि ये जो हाई राइज है, चलिए आपने हाई राइज बना लिया, लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक हर फ्लैट में आप एक पेड़ उगाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे पानी जो है वो कंजर्व होता है. We also have the grey water treatment plant where we use the natural methodologies like providing swales and of course the percolation pits and various ways with so many other consultants. The same thing we are also taking. I'm also a professor with our HOD here from LS Reja School of Architecture. In our postgraduate program, we also actually telling them that how at a larger regional level to a very micro level we can do these steps. So, so we are definitely... काम जो आपने शुरू किया वो अब जल शक्ति मंत्रालय में आगे चलता रहेगा, क्योंकि आप अभी भी उसको गाइडेंस दे रहे हैं, मुझे ये पता लगा है. जी, देखिए, देश में पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है. और आज मैं आपको केवल साउथ का उदाहरण बताऊंगा कि कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में काफ़ी झगड़ा है कावेरी को लेकर. अब आंध्र प्रदेश में मैं जब वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर था तो पोलावरम करके एक 60,000 करोड़ का काफ़ी डैम अब 60-70% पूरा हुआ है. अब उसके आगे 1100 टीएमसी पानी समुद्र में जाता है और तमिलनाडु और कर्नाटक का झगड़ा जो है वो हार्डली 45 टीएमसी के लिए है. और इसलिए अभी वो प्रोजेक्ट हमने 2 तैयार किए हैं कि पोलावरम का जो बैक वाटर है, ऑलरेडी वहाँ एक 15,000 हेक्टेयर लैंड इरिगेटेड हुई है. अगर आप अमरावती जाओगे तो वो पानी कैनाल से कृष्णा में आता है. तो वो जो बैक वाटर है पोलावरम का, वो कृष्णा में लेना, कृष्णा का पेनार में लेना और पेनार का पानी कावेरी में छोड़कर कर्नाटक को टेल एंड तक ले जाना. क्या बात है, यानी सही तरह से इंटरलिंकिंग पर आप काम कर रहे हैं. इंटरलिंकिंग, देखिए, एक बेसिन का वाटर दूसरे बेसिन में लेना, इससे बाढ़ का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और पानी की समस्या भी खत्म हो जाएगी. अब जैसे मुंबई के लिए मैंने अभी एक कांडला में हमने एक प्रोजेक्ट अभी प्लान किया है कि हाइब्रिड पावर से, सोलर और विंड दोनों से बिजली तैयार करेंगे. तो बिजली की कॉस्ट आ रही है 2 रुपये 30 पैसे 40 पैसे पर यूनिट. अभी चेन्नई में जो पानी डिसैलिनेशन प्लांट चल रहा है उसकी पावर कॉस्ट है 6 रुपीज़ पर यूनिट. अगर यही हमने हमारे टूटीकोरिन से लेकर तीनों पोर्ट को मैंने अभी पायलट प्रोजेक्ट दिया है, पारादीप, टूटीकोरिन और कांडला, कि डिसैलिनेशन प्लांट डाले. और डिसैलिनेशन प्लांट में अगर हमने 6 रुपये के बजाय अगर 3 रुपये में पावर दी, पावर मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया है कि हम लोग कांडला में पावर दो देंगे, वो पावर हम बाकी 12 मेजर पोर्ट को ले जाएंगे. तो वो 3 रुपये यूनिट अगर पावर मिलेगी तो डैम बनाने के बजाय डिसैलिनेशन करना आसान होगा. अब मुंबई के लिए सिंपल बात है कि मलबार हिल से लेकर इधर समुद्र है और गेटवे ऑफ इंडिया से समुद्र है. तो मैंने मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक सुझाव दिया था कि पुराना जहाज खरीद ले, पुराना जहाज खरीद कर उस पर डिसैलिनेशन प्लांट लगाए. समझो, आप समझ लीजिए कि मलबार हिल से 8-10 किलोमीटर दूरी पर और गेटवे के उधर, और हैंगिंग गार्डन पे अपना
टैंक है जहाँ से पानी मिलता है। हाँ तो हम लोग डिसलेशन प्लांट लगाकर और सोलर पावर तैयार करेंगे। तो सोलर पावर का रेट अभी 2 रुपये 60 पैसे तक आया है, और वो पानी डिसलेशन करके डायरेक्ट हैंगिंग गार्डन के ऊपर के टैंकी में डाल दिया। तो विहार लेक से और दूर से पानी लाना, इतना बड़ा पाइपलाइन डालना, इसके बजाय वो पानी उपयोग में आएगा। मैं दिल्ली का आपको सबसे अच्छा उदाहरण बताता हूँ कि यमुना पर हम लोग करीब 11,000 करोड़ के 13 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 13 भी काम शुरू है। एक दिन मुझे केजरीवाल मेरे पास आए और ओखला में जो दिल्ली का गंदा पानी है 400 mld जो हम साफ कर रहे हैं, वो पानी केजरीवाल जी ने मुझे मांग की कि ये पानी मैं वजीराबाद, जहाँ दिल्ली को पानी मिलता है पीने के लिए, उसमें छोड़ना चाहता हूँ, ये मुझे आप अनुमति दो। तो मैंने उनको कहा कि आप मेंटली प्रिपेयर हो, कल अगर मैं निर्णय करूँ कोई कंट्रोवर्सी होगी, बोले आई एम रेडी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैंने उनको अनुमति दी। वो सिंगापुर में यही पानी है रिसाइकलिंग किया हुआ जी। तो 400 mld पानी जो है वो अब ओखला का जो गंदा पानी था वो उधर गया। मथुरा में मैंने एक हाइब्रिड एन्युटी में यमुना पर प्रोजेक्ट डाला है, त्रिवेणी इंजन को मिला है, और वो जो गंदा पानी 80 mld स्लज है उसको शुद्ध करके वो हम लोग इंडियन ऑयल को दे रहे हैं, और वो 20 करोड़ साल के पानी के पैसे दे रहे हैं। अब मैं नागपुर का पार्लियामेंट मेंबर हूँ और मेरे शहर में मैं 5 साल से ये काम कर रहा हूँ। अभी फिलहाल पूरे नागपुर का टॉयलेट का पानी हमने 180 करोड़ रुपए हमको रॉयल्टी मिल रही है, और हमने महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया। क्या पावर बात, जनरेशन। क्या बात। उसका फायदा क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। अभी नागपुर में हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, तोतला ढो करके डैम है, आपने अखबार में पढ़ा होगा। जी। हमें मध्य प्रदेश ने उधर एक चौराई करके डैम बना और हमारा पानी बंद हो गया, तो हम लोग ऑक्सीजन पर थे। तो अभी हमने क्या किया कि महाराष्ट्र सरकार के 2 पावर प्रोजेक्ट थे, कोराडी और खापरखेड़ा। मैंने उनको कहा वहाँ 5,000 मेगावाट पावर तैयार हो रही, वो एक बूंद भी पानी अब पेंच का या तोतला डो का नहीं लेंगे, वो रिजर्वेशन निकाल लिया और पूरा गंदा पानी रिसाइकलिंग करके पावर को दे दिया। क्या बात है। अब उस पानी से हम लोग मीथेन निकाल रहे हैं, 7 बायोडाइजेस्टर है, अगले 2 महीने में इनॉग्रेशन होगा, और उसमें मटन, मच्छी और फ्रूट वेजिटेबल मार्केट की वेस्ट उसमें डालकर मीथेन तैयार करके, मीथेन से CO2 अलग करके बायो सीएनजी तैयार कर रहे हैं। 80 बसेस डीजल की हमने बायो सीएनजी पर कन्वर्ट की है, और 2 महीने के अंदर 350 बसेस, 100 कार और 100 ट्रक ये पूरे बायो सीएनजी पर कन्वर्ट करेंगे, यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। वाह वाह वाह। तो पानी की कमी नहीं है, उल्टा अमिताभ जी को पता होगा, क्योंकि ये इलाहाबाद में बाढ़ का पानी बार बार 9 झगड़े मैंने सॉल्व किए राज्यों के, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पर ये मैं पंचेश्वर का नहीं सल्टा सका। तो ये पंचेश्वर है, ये नेपाल में है, और बिहार में पूरा जो गंगा में बाढ़ आता है वो गंडक के कारण आता है। और वो पंचेश्वर में हमने एक 6,000 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी है, और नेपाल और भारत हम मिलकर अगर वो डैम बनाते हैं तो हाइड्रो पावर 6,000 मेगावाट मिलेगी। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि गंडक का पानी अगर वहाँ से रोका जाएगा तो गंगा के कारण जो बाढ़ हो रहा पूरा इधर अपर स्ट्रीम पर वो निकल जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि कोई कंसेप्ट जो है जिसमें मदद चाहिए। अब हम लोग नदी को ड्रेजिंग कर रहे हैं, और मैं आपको और एक कहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार का कभी आप ये प्रेजेंटेशन पर उनको बुलाइए जी। मैंने एक छोटा सा निर्णय किया और इसके लिए देवेंद्र जी को प्रार्थना की, और उन्होंने गैजेट नोटिफिकेशन निकाला कि हम रोड का जब काम करेंगे तो जितने नदियाँ और नाले बीच में जाते हैं उसका ड्रेजिंग फ्री ऑफ चार्ज NHAI करेगी, और वो पूरा मटेरियल लेके हम रोड में कंस्ट्रक्ट करेंगे। आपको बताऊँ इतना सुंदर है उसका प्रेजेंट, किताब भी लिखी गई अभी उसके ऊपर। इतने बड़े प्रमाण पर वाटर का कंजर्वेशन हुआ कि इस बार वहाँ लोगों ने दिवाली मनाई, पटाखे फोड़े, और पूरा बुल्ढाना, अकोला, वाशिम, एक मूर्तिजापुर करके गांव, तो नदी का पुनर्जीवन हो गया, और पूरी नदी खोल होकर अब वहाँ पानी वाटर बॉडी बन गई। आजू बाजू के क्षेत्र में जो कुएं थे उसका पानी बढ़ गया और पानी की समस्या सुलझाई गई। और अब 170 ब्रिज कम बंधारे बना रहे हैं। ब्रिज कम बंधारे का मतलब लातूर में 3 बना रहे हैं जो रेलवे से पानी लाया गया था जी। तो जहाँ ब्रिज बनेगा वहाँ बंधारा बनेगा, तो 8-8 किलोमीटर तक पानी रुका रहेगा। तो दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ,
और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। क्या बात है, क्या बात है। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में। पानी की कोई कमी नहीं है, उल्टा ज़्यादा पानी समुद्र में जा रहा है। वो पानी रोक कर हम लोग पानी का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं और बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हो रहा है उसको भी हम बचा सकते हैं। नितिन जी, आपने जो कुछ कहा, अभी थोड़ी देर पहले देवेंद्र फडणवीस जी हमारे साथ थे, गजेंद्र शेखावत जी थे, जो आपने अभी कहा उन्होंने भी कहा, गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, शहर, और यही बात आपने भी कही। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये पानी की किल्लत हम देख रहे हैं, जहां जहां हम देख रहे हैं, आपने कहा बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। 89% ऑफ द वाटर जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वो रूरल इंडिया में एग्रीकल्चर और उसके लिए है, 5% इंडस्ट्री और 6% अर्बन इंडिया। ये ओवरऑल आंकड़ा है। पर कोई टारगेट हमने सेट किया है कि जो 4000 के 2 प्रोजेक्ट हैं जो लिटरली मैंने तैयार करके रखे हैं गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में, दमन गंगा पिंजर। ये पूरा वेस्टर्न घाट का पानी जो है ये पूरा समुद्र में जा रहा है। ये पानी रोककर एक डैम बनाकर वो पानी गोदावरी में छोड़ना। तो गोदावरी में लोअर स्ट्रीम पे नासिक, मालेगांव, धुले, नंदुरबार और आगे हमारा जायकवाड़ी है मराठवाड़ा का, तो पूरा भर सकते इतना पानी है जो पानी समुद्र का। अब गुजरात और महाराष्ट्र में मैंने 3 बार दोनों चीफ मिनिस्टर को बुलाया। देवेंद्र जी ने भी कोशिश की, मैंने गुजरात के भी चीफ मिनिस्टर, पर छोटी मोटी बातों के लिए वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। वो साइन नहीं किया उन्होंने एग्रीमेंट को। सब तैयार है, टेंडर पेपर तैयार है, लैंड एक्विजिशन सब प्रॉब्लम तैयार है। एक प्रॉब्लम अगर ये सॉल्व किया तो महाराष्ट्र की पानी की समस्या 70% रिजॉल्व हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तापी नार नर्मदा करके दूसरा है जी, जो जलगांव का है, वो भी तैयार है, जो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है। और सबसे दुर्भाग्य कि उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड, इसमें केन बेतवा है जी, दोनों बिल्कुल साइन करने का। अभी कमलनाथ कल ही मुझे मिले थे, मैंने उनको याद किया कि बीजेपी की सरकार थी तब कुछ कारणवश नहीं हो पाया। आप आइए, मैं मिनिस्टर को भी बुलाता हूँ, हम लोग साइन कर लें। आज देश में 40 प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो आज साइन हो सकते, पर थोड़ा उसमें मैंने थोड़ा उल्टा किया उसको, कि नदी जोड़ प्रकल्प की शुरुआत वो गंगा से नहीं की। मैंने उन सुझाव ये दिया कि जो समुद्र में पानी जा रहा है हम साउथ से शुरू करें और गोदावरी का पहले टैप करें। तेलंगाना सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। अभी ये गढ़चिरौली महाराष्ट्र और तेलंगाना सीमा पर कालेश्वर करके डैम बनाया हुआ है। और अभी इसके बाद जो इंद्रावती नदी आती है वो छत्तीसगढ़ से आती है, छत्तीसगढ़ से आती है, वो मिलती है गोदावरी को। इतना पानी है और पूरा छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट है। अब उस पानी का वो कुछ कर नहीं सकते हैं, पर पॉलिटिकली डरते कि मैंने अगर साइन कर दिया और ये पानी के यूज करने का अधिकार, क्योंकि उनका अधिकार है। फिर उसके बाद उड़ीसा है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ झगड़ रहे हैं क्योंकि एक्चुअली पानी ये भी नहीं यूज कर रहा, वो भी नहीं यूज कर रहा, पानी समुद्र में जा रहा है। हमारे मराठी में एक कहावत है, तुला ना मला घाल कुतऱ्याला, ऐसा दोनों में झगड़े में वो पानी किसी को नहीं मिल रहा है। मैंने उन दोनों को समझा, लगभग मैंने बहुत सीएम को समझाकर 9 तो मैंने एग्रीमेंट कर लिए, थोड़े बहुत कुछ रह गए, पर अभी शेखावत जी के पीछे मैं हूँ और ये करा लेंगे। और मैं बिल्कुल नम्रता हूँ, ये जो वर्ल्ड बैंक की और लोगों एक्सपर्ट लोग और ये भाषा बोलते हैं ना स्कैरसिटी की वगैरह की, अभी मुंबई में है अमिताभ जी, मैं इतने दिन मुंबई में आता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। ये पूरा पानी आपका गंदा समुद्र में छोड़ रहे हैं। पूना मुंबई में जितने इंडस्ट्री को पानी लग रहा है वो फिल्ट्रेट पानी दे रहे हैं हम लोग। अभी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मैं मंत्री था, मैंने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और जेएनपीटी में कहा कि तुम्हारा एक भी बूंद समुद्र में नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने चेयरमैन, सर बिल्कुल नहीं जा रहा। बोला ऐसा नहीं जा रहा है, फिर कहाँ जा रहा है? बोले हम लोग पानी ये करके बॉम्बे के ड्रेनेज में छोड़ देते हैं। वो ड्रेनेज कहाँ जा रहा है? तो बोले समुद्र में जा रहा है। मैंने बोला आप क्यों छोड़ते हो? बिल्कुल रिसाइकल, एक थेम गंदा पानी नहीं छोड़ा। अब उन्होंने रिसाइकलिंग प्लांट लिया, उन्होंने डाला। अब यही पानी अगर हम लोग अगर इंडस्ट्री को यूज करेंगे तो उतना फिल्ट्रेट पानी, वो बिहार लेक से आया हुआ शुद्ध पानी देने की जरूरत नहीं। और ये समुद्र को छोड़ने के बजाय मुंबई का पूरा पानी एक तरफा करके टुवर्ड्स ठाणे अगर हम ले जाएंगे शुद्ध करके, इंडस्ट्री को देकर बाकी बात तो खेती में जाएगा। बिल्कुल, पूरा समुद्र में छोड़ रहे हैं। और पूरा समुद्र का, आज भी मैं आया, हर बार मुझे, मैं वरल में रहता हूँ, पहले जाता था, जाना बंद कर दिया। हर बार मुझे दुख होता है, बैठना नहीं होता।
और ये जितना पानी छोड़ रहे समुद्र में वो साफ करके छोड़ना चाहिए। मुझे नहीं लगता ऐसा जाता होगा, पूरा गंदा पानी, काला काला रंग है। जू में जाओ, वर्ली में जाओ, सब जगह। नितिन जी थोड़ा और हड़काने की जरूरत है आप थोड़ा सा और हड़काने की जरूरत है। अभी इन्होंने कहा ना कि मराठी में उन्होंने कहा, मुझे सर का एक डायलॉग याद आ गया, मैं तो करूंगा नहीं, तुम्हें भी करने नहीं दूंगा। बट ये उल्टा पड़ गया कि मैं तो पानी इस्तेमाल करूंगा नहीं, तुम्हें भी नहीं करने दूंगा। अभी जी यू बिलीव, ठीक है मैंने गलती की कि मैंने स्कैरसिटी की बात की, लेकिन आप और मैं एक ही बात सोचते हैं नितिन जी। मैं कहा इतना सारा पानी है पर हम उसको बचा नहीं रहे हैं, इतना सारा पानी है हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसका संचय नहीं कर रहे हैं। अब मुंबई को क्या जरूरत है कि कैचमेंट एरिया से पानी ले, जब मुंबई में इतना पानी होता है, अगर इसको हम बचाना शुरू करें। अमित जी, आई वांट टू एंड दिस लॉन्च प्रेस कॉन्फ्रेंस विद योर थॉट्स। आपने नितिन जी को सुना, सबको सुना, हमने आपको सुना। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो कुछ माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है उसका चेहरा और आवाज बन के उसका प्रचार करूंगा। सर क्या बात है, अच्छी बात बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। जिससे अमिताभ जी मेरे ऊपर खुश होंगे। मैं इलाहाबाद में 9 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, नमामि गंगा में कर रहा था, उसमें से 4 पूरे हुए। और वाराणसी में भी 9 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश को, गंगा को जैसे ड्रेनेज छोड़ने की एक लाइन बना दी गई थी, और सब जगह का पानी हम शुद्ध करके इस साल कुंभ में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं जब वहां गया तो लोगों ने आशीर्वाद दिया, पहली बार लोगों ने कुंभ में स्नान किया और पानी पिया। बिल्कुल। आज इस बार ये गंगा, इसके लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, स्पेशल राउंड ऑफ अप्लॉज टू हिम एंड हिज टीम, बिकॉज मैंने आज तक कभी किसी को नहीं देखा कि गंगा मैया में ऐसे अंजलि ली और वो पानी ऐसे पी गए और फिर दौड़े नहीं कि भाई मुझे एंटीडोट दो, कुछ हो तो नहीं जाएगा मुझे। ये हमने किया, हमारी टीम ने जाकर वहां 80 घाट पर किया कि पानी पिया, और हमारे सामने लाइव ऑन एयर बॉटल से ऐसे पानी भरकर ये गंगा मैया से ऐसे पानी पिया। ये करना बहुत मुश्किल है नितिन जी, क्या आप पूरे इंडिया में ये कर सकते हैं हम? नहीं, ये एक्चुअली इसके लिए बहुत कैपिटल कॉस्ट लगेगी। और अभी तक क्या हुआ है कि हमने लोगों को अलाउ किया। हाँ, आप बद्रीनाथ केदारनाथ जाते, बहुत दुख होता है, इतना सुंदर पानी निकलता है और बाजू में एक घर है, एक बिल्डिंग है, दो मंजिली 3, और पूरा अपना पाइप छोड़ दे रहे गंगा में। अभी आप हरिद्वार जाइए, मैं जब गया तो मैं खुद देखने के लिए गया, रेस्टोरेंट है। मैंने चीफ मिनिस्टर को और चीफ सेक्रेटरी को बोला कि अगले बार इन सब लोगों के अगर नहीं बनेंगे कनेक्शन तो इनको सबको नॉन अवेलेबल ऑफिस लगा जेल के अंदर डाल दो। क्राइम है ना हमारा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। कभी कभी अभी तक हमने इसको रोका ही नहीं। और अभी आपको, मैं सरकार में इसलिए मेरा बोलना अच्छा नहीं है, पर और एक भी चीज में आप ध्यान दो कि ये नदी किनारे पर जितने शहर बसे हुए हैं जी, इतने कितने शहर को लोगों ने अपने शौचालय को ड्रेनेज लाइन से जोड़ा है। ड्रेनेज लाइन को जोड़ा है, वो कितनी ड्रेनेज लाइन का पानी कहाँ जा रहा है? हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, लाइन से पानी जा रहा था। अब मैं हाउस कनेक्शन के लिए हमने जनमामि गंगे से पैसे दिए उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को, और मैंने कहा ये पैसे लेके ये ड्रेनेज से जोड़कर ये खत्म करो। अब प्रॉब्लम है कि इसमें जनता का अवेयरनेस बढ़े और इस बातों को लोग रियली इसका विरोध करें। और ऐसा कोई कर रहा होगा होटल वाला, रेस्टोरेंट घर वाला, जो हमारी इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है, और इतना दुख होता है, आंखों में आंसू आती है, क्योंकि कितनी गंगा सुंदर है, वो शुद्ध पानी आ रहा है, और एक होटल वाला रोज वहाँ से अपने बर्तन मांज के पूरा पानी गंदा छोड़ रहा है। तो मुझे लगता है ये इसको जनता का, आप जैसा अमिताभ जी जैसे लोग, आप जैसे लोग जनता को कहेंगे, इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा, और लोगों ने ये करना बंद किया। तो ये जो स्पॉन्टेनियस लोगों का सहयोग चाहिए कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं अपने घर का गंदा पानी नहीं जाने दूंगा रिवर में, इतना भी लोगों में एक अवेयरनेस आ गया ना, तो मैं आपको बता दूं आपका 50% के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करेंगे, लेकिन मिशन पानी को बिल्कुल सक्सेसफुल बना कर रहेंगे, ये हमारा। और मैं नेटवर्क 18 की तरफ से आपको ये वादा कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू अमिताभ बच्चन, नरसिम्हा मनीश्वर, एंड ऑफ कोर्स यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।